आमने सामने कुछ कॉन्वर्सेशन करेंगे, वार्तालाप करेंगे, सवाल जवाब करते रहेंगे, तो सभी का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। जब हम खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं तब एक गहराई से उतर जाता है। इसलिए कॉन्वर्सेशन यानी वार्तालाप जरूरी है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा पूछते रहो। अभी भी एनिग्मा के बारे में किसी को कुछ पूछना है तो यू आर फ्री टू आस्क, आप पूछ सकते हैं। એનીમાં બે ટાઈમ લઈએ છીએ બરોબર. રાત્રે લીધો બરોબર, પછી સનરાઈઝ આપણે થઈ જાય બરોબર, પછી કલાક લેવું લેવા 200 ગ્રામ પોણી 50 અંદર રાત્રે રોકા માટે. તમે કીધું ને કે તમે ઊંઘી જાઓ લઈને તકલીફ તો મેં વાત કરી બરાબર. પણ એમાં ક્યારેક દહેશત છે, રાત્રે નીકળી જાય તો કપડાં બગડે પણ એવું બને. તો ઓર્ડર આવે તો ઉઠવું પડે ગમે ટાઈમે, ખબર પડે તો ના પડે તો એમને એમ થાય. પણ જનરલી ખબર પડી જાય છે, લોકો જાગી જાય છે, એવું બનતું નથી. એકવાર મારો લેકો બગડ્યો હતો, મેં આ રીતે સમય પાસ કરવા પ્રયત્ન કર્યો અને થોડોક સમય વધારે થઈ ગયો, મારો લેગો બગડે તો માફ કરજો. આ વાત હું સાચી બરાબર છે. તો મેં કહ્યું ને, દરેકે વિવેકપૂર્વક વિવેક શબ્દ યાદ રાખો. લેંગો બગડ્યો પણ શરીર સુધર્યું ને. લેંગો તો ધોઈ નાખાશે, કદાચ બહુ એવું લાગે તો એ ફેંકી દેવાય, પણ શરીર જે આટલું કિંમતી છે એ સુધરતું હોય તો એવા ભલે ને લેંગા ગમે એટલા બગડતા. હવે કાળુભાઈ સાવલિયાના બાપુજીને પથારીઓ બગાડી હતી ને કેટલો એનીમાં આપ્યો હતો અને જીવતા થઈ ગયા. પથારીઓ બગાડી એટલે તો નામ આપણે સંજીવની આપ્યું છે. एनीवे अभी भी किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं. જૂના સાધકો છે 6-8 મહિનાથી સાધના કરતા હોય, 6-8 મહિનાથી સાધના કરતા હોય, પહેલા 2 ટાઈમ એનિમા લઈ ચૂક્યા હોય અને પછી મંથલી સેકન્ડ મંથ થર્ડ મંથ જે કર્યું હોય કન્ટિન્યુ અને સાંજે એક ટાઈમ જમતા હોય, એ લોકોને કેવી રીતે એનિમા લેવાનો? 6 મહિનાથી સાધના કરી, પહેલા આપણે ક્લિયર બધું 3 મહિના જે એનિમાનું રૂટીન હતું એ બતાવી દીધું, પછી એ લોકો જે સાંજે એક ટાઈમ જમે છે જૂના સાધકો, તો એ લોકોને એનીમાં કેવી રીતે લેવાય? એનીમાં પછી જરૂર નથી, પણ આપણું શરીર બોલશે. એ કહેશે આપણને લાગે કે આ જરા બેચેની છે, થોડું માથું ભારે છે. હા, એ ગુજરાતીમાં સવાલ છે એટલે ગુજરાતીમાં જવાબ આપું, પછી હિન્દી એનું કહીશ, એટલે હિન્દી વાળા ચિંતા ના કરે. તો આપણું શરીર ખુદ કહી દેશે આપણને, સહેજ કળતર જેવું છે, XYZ ગમે તે, તમને અંદરથી ભગવાન છે એ તમને ગાઈડ કરશે. આપણે પાર્થ છીએ. પાર્થ એટલે કોઈ પુરુષ અર્જુન એવું જરૂરી નથી. આત્મા પાર્થ છે અને પરમાત્મા પાર્થ સારથી છે. તો આપણને એ ગાઈડન્સ આપતા રહેશે, ઇન્ટ્યુશન આપતા રહેશે. એટલે આપણને એવું લાગે કે એનીમાં લઈ લઈએ તો સારું, તો લઈ લેવાના. રેગ્યુલરલી લેવાની જરૂર નથી. આમ છતાં જે રેગ્યુલર લે છે એને પણ કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. ગઈકાલે આપણે ચર્ચા કરી ગયા હતા. એક તો આપણે દાદા ડાય દાદા અહીંયા છે, એણે પોતે પણ કીધું કે 7 વર્ષથી સળંગ સવાર સાંજ 2 વખત એનીમાં લે છે. એમણે પોતાની ઓળખ પણ આપી કે એનો દીકરો
MD DGO છે, એમના ઘરમાં 3 ડોક્ટરો છે, એ લોકો પણ લે છે. ઘણા MD ડોક્ટર ને MBBS ડોક્ટર પણ લાંબા સમયથી એનીમાં લે છે. કાલે મેં આ બધી વાત કરી હતી. શું કામે લે છે એ જ્યારે આપણે એને પૂછીએ છીએ ત્યારે એ કહે છે કે અમે જાણીએ છીએ કે આવું રાંધેલું મૃત આહાર ના ખવાય, પણ અમને એ ખાવામાં મજા આવે છે, જેમ દારૂડિયાને દારૂ પીવામાં મજા આવે એમ. હવે એ વ્યસન અમારાથી છૂટતું નથી, એટલે અમે એ મોજ માણવા અને એ મોજની મજા અને મોતની સજા અમારે નથી ભોગવવી, એટલે એને કોમ્પેન્સેટ કરવા અમે રોજ એનીમાં લઈ લઈએ છીએ. ગંદકી નાખીએ ને સાફ કર્યા કરીએ. હા, એટલે વાંધો નથી. એવું લાગે ત્યારે એનીમાં લઈ લેવો. एनीवे, तो बहन जी का सवाल ये था कि 6-7 महीने से ये कर रहे हैं, बाद में NDS फॉलो करते हैं और बाद में रात का एक बार पक्व आहार जो अब तक खाया इसको खाना कहा गया, जो भगवान ने गॉड गिवन है वही स्वरूप में वो खाना है। आग पे चढ़ाकर हमने इसको पाखाना बना दिया। तो जब पाखाना डालते हैं शरीर में तो इसको तो जल्द से जल्द निकालना ही अच्छा है, क्योंकि वो तो मृत आहार है, निकलेगा भी नहीं, पड़ा रहेगा। इसको धक्का मार मार के शरीर को निकालना पड़ता है। तो ऐसे समय में एनिमा ले सकते हैं क्या फिर से, या लेने की आवश्यकता है, ऐसा सवाल है। तो इसके जवाब में हमने हमारे अनुभव के आधार से ये बताया कि अवश्य लेना है तो ले सकते हैं डेली, नहीं तो भी जब इसकी मात्रा अधिक हो जाएगी तो हमारे अंदर बैठा भगवान हमें गाइड करेंगे। इंट्यूशन होगा, अंदर से आत्मा की आवाज आएगी कि एनिमल ले लो, संजीवनी कर लो, तो कर लेना। और कोई सवाल किसी का? ये सवाल पूछा पारुल बेन ने। आज दूसरा निर्जला है इनका उपवास, कल भी निर्जला था। બહુ સરસ. શિબિરમાં આવીને પણ તમે 24 कलाक 6 महीने से बच्चा वो ये NDS को फॉलो कर रहा है, उसका वेट भी लॉस हुआ है, लेकिन अभी शाम को पक्का खाना खाता है। दिन को 2-3 बजे जूस पीता है, उसके बाद कुछ भी नहीं खाता है, और शाम को पक्का खाना खाता है और एनिमा हफ्ते 10 दिन में लेता है। तो क्या उसको एनिमा डेली लेना चाहिए या जैसे चल रहा है? डेली में नहीं लेना है, खुद को लगता है तो वो ले लेता हफ्ते 10 दिन में। लेना है तो ले सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। एनिमा वो एंटी नेचुरल एक्टिविटी है। नेचुरल को सदा काल पकड़ के रखना है, एंटी नेचुरल को जितना हो सके जल्दी छोड़ देना है। लेकिन जो मैंने आपको बताया अभी कि जिसको मजबूरी है कि पकवा आहार लेना है और पकवा आहार से इसको गैस होता है, एसिडिटी होती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होते हैं, फिर भी छोड़ नहीं सकते शराबी की तरह, तो इसके लिए उनके लिए ये एक सॉल्यूशन है कि जो नहीं छूटता वो खाते रहे और इसको साफ डेली करते रहे। तो ऐसी स्थिति में लेना है तो ले सकते हैं और फिर भी इससे कोई नुकसान नहीं है। बाकी लेना नहीं है, सही भोजन लेने लगते हैं
और कोई कब्ज जैसा नहीं रहता, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तो फिर एनिमा कंटिन्यू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और हमारी गुड़िया जो एनिमल लेती है, वो जब तक एनिमल नहीं लेती है वो फ्रेश नहीं होती है। एनिमा लेती है तो ठीक है, जैसे मतलब तो बाहर गए और गए, जब तक मतलब वो फ्रेश नहीं हो सकती है बिना एनिमल से। आदत हो गई। बिना एनिमा वगैरह नहीं लेकिन ये तो सभी के लिए होगा, आपको समझाया गया। हर किसी के लिए ये स्थिति आएगी, क्योंकि आज तक हमने ये पूरा भरता नहीं है, इसके पहले तो हम खींच लेते हैं। तो कुछ दिन के लिए हफ्ते भर के लिए वी विल हैव टू वेट, हमें ठहरना है, देखना है, और अपने आप सिस्टम नॉर्मल हो जाएगी। कल भी हमने समझाया था, आज भी नरहरि भाई ने समझाया, इसमें भरेगा तो निकलेगा ही, ये भरेगा तो यहाँ से नहीं निकलने वाला है, उधर से ही निकलने वाला है। लेकिन जब भरेगा तब, हाँ वही अरेंजमेंट है, लिमिट स्विच है। ये जब लिमिट स्विच तक नहीं भरता तब तक ये मोशन लगेगी ही नहीं, हमें इच्छा ही नहीं होगी। तो इसको भरने देना है, तो अपने आप ये इच्छा होने लगेगी और नॉर्मल हो जाएगा। तो ये हर किसी के लिए है, क्योंकि जब हम एनिमा शुरू करते हैं, लंबे समय तक 3-3 महीने तक चालू रखते हैं, इसका मतलब ये है कि भरता नहीं है, इसके पहले हम निकाल लेते हैं, खींच लेते हैं संजीवनी के माध्यम से। तो एक तो हैबिट हो जाती है, तो हमें मौका देना है, सिस्टम अपने आप नॉर्मली काम करने लगे, इसके लिए मौका प्रदान करना होगा। तो धैर्य धारण करना होगा। तो अपने आप ये सिस्टम नॉर्मल हो जाएगी। आज हमारी सिस्टम नॉर्मल हो गई है। आज भी हम वो टॉयलेट जाके आए हैं, ये जूस, आंवला युक्त जूस पिएंगे तो फिर से जाना पड़ेगा, नहीं पिएंगे तो नहीं जाना पड़ेगा। अब ऐसा हो चुका है कि टेबल टू टॉयलेट, डाइनिंग टेबल से सीधा टॉयलेट जाना पड़ता है। जैसे खाना खाया, इस साइकोलॉजिकल इफेक्ट होती है कि ये जो नया आया तो पुराने को निकाल देता है, तो तुरंत जाना पड़ता है, दोपहर रात को भी। तो जितनी बार खाते हैं उतनी बार जाना पड़ता है। ये अपने आप सिस्टम नॉर्मलाइज हो जाती है, लेकिन तुरंत नहीं होती। इसके लिए हमें सोचना भी नहीं है, वो शरीर है अपना काम खुद करता रहेगा। ये इतने सालों के बाद हमारी ये स्थिति आई है। हाँ? तो ये स्थिति सभी की आ सकती है, नरहरि भाई की भी आ गई है, और बहुत सारे लोगों को ये ऐसे अनुभव होते हैं। और कोई સાહેબ ડાયાબિટીસ 88 કલાક નિર્જળા કરવા છતાંય 200 ની આસપાસ બતાવતું હતું, એનું કારણ? डायबिटीज कितने समय से है?
3 साल से। 3 साल से, बराबर। तो थोड़ा समय दीजिए। लंघन, जो जल्दी आप रिजल्ट चाहते हैं तो लंघन ज्यादा कीजिए और रसाहार पे जोर दीजिए, तो एकदम जल्दी रिजल्ट मिलेगा। बाकी खाना खाएंगे, रिजल्ट तो मिलेगा ही, लेकिन समय लगेगा। तो ये तीनों बात करते रहना है, एनिमा लेते रहना है। एनिमा कितना समय लेने का? मिनिमम 2 डेली, ट्वाइस ए डे, मिनिमम 3 बार लेते हैं शुरू में, तो भी नो प्रॉब्लम। बाकी 2 बार लेना है। नहीं, कितने महीने तक? हाँ, और फास्टिंग बढ़ाओ जितना हो सके ज़्यादा, और बाकी के समय में रसाहार कीजिए। तो कितना, आपको तो केवल 3 साल पुराना है, कितने भी साल पुराना है, अवश्य वो खत्म हो जाएगा, निकल जाएगा, दवाइयाँ बंद हो जाएगी, इंसुलिन बंद हो जाएगा। गन्ने का जूस पीते हैं तो भी वो शुगर लेवल नॉर्मल रहेगा। अंगूर खाते हैं तो भी, डेट खाते हैं तो भी, कोई भी मीठा फल खाते हैं तो भी अब शुगर लेवल बढ़ने वाला नहीं है। हाँ बोल, शहद ले सकते हैं? शहद भी ले सकते हैं, लेकिन हम कहते हैं नेचुरल, तो शहद नेचुरल नहीं है। जैसे दूध नेचुरल नहीं है, नेचुरल है वहाँ घास, गाय का, भैंस का खुराक, वो नेचुरल है। लेकिन इसमें से उनके शरीर में प्रोसेस होते होते इसमें से दूध बनता है, ये नेचुरल नहीं है। उसी तरह फूल जो है नेचुरल है, लेकिन फूल में से अर्क लेकर के मधुमक्खी जो ये हनी, मध बनाती है, शहद बनाती है, तो ये नेचुरल नहीं है, वो भी प्राणी जन्य पदार्थ है। तो ये सही भोजन हमारा नहीं है। दूसरा कि एक हिंसा है, जिसने अपने लिए कितनी कड़ी मेहनत करके इकट्ठा किया है, इसको हम छीन लेते हैं, तो ये भी तो एक हिंसा है। प्राणी पदार्थ है। तो पहले हम शहद लेते थे, शहद पे फास्टिंग भी करते थे। नवरात्रि फास्टिंग हम नींबू, शहद और पानी मिला के नवरात्र उपवास करते थे, करवाते थे। लेकिन जब से ये समझ में आया कि शहद हमारा भोजन नहीं है, शहद का उपयोग करना ये भी एक हिंसा है, तब से हमारा शहद का प्रयोग बंद हो चुका है। એનીમાં સાહેબ, એનીમાં લેવા માટે સુઈને જ કરવું પડે કે આ વાંકા વળી ચાલે? કારણ કે कोई भी पोजीशन आपको कल भी बताया था, आज भी बताया है, आपको जो ठीक लगे। लेकिन अनुभव ऐसा बताता है कि राइट हैंड साइड, दाहिनी और सो करके पानी चढ़ाने से रिजल्ट अच्छा मिलता है। बाकी कोई भी पोजीशन में ले सकते हैं। हाँ जी, और कोई?
સોરે તો હોય B12 कम रहता है। B12 कम है। બધા માટે એક જ વાત છે, हर किसी के लिए एक ही बात है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं, कोई रोग विशेष नहीं। सो सिंपल हम बार बार आपको बताते हैं, कितने एग्जाम्पल के साथ। खेत का एग्जाम्पल लिया, कंप्यूटर का एग्जाम्पल लिया, कार व्हीकल का एग्जाम्पल लिया। एक ही बात है, शरीर को साफ सुथरा रखो। इसके लिए ये 3 बातें आपको बार बार बताती जाती है। और साफ होने के बाद फिर से कूड़े कचरे से शरीर को न भरे, शरीर में नो एंट्री, गलत आहार को नो एंट्री। बस इतना करने से चाहे कोई भी रोग है निकल जाएंगे, कोई भी परेशानी, कोई भी शारीरिक समस्या, वहां तक की मानसिक समस्या भी, ये सब कुछ हट जाती है। तो आप सिद्धांत समझ लो तो सब कुछ इसमें आ जाता है। और इसीलिए हम बार बार एक ही बात बताते हैं, सिद्धांत साफ करो और साफ रखो। खाते हैं, प्रोसेस होता है, अंदर कूड़ा कचरा जाना है, स्वाभाविक है, जाता है। तो ऐसा खाए जो खुद निकल जाए। जो भोजन हमारे लिए भगवान ने बनाया है उसको वो ही स्वरूप में खाना है, तो वो निकल भी जाएगा। तो बस एक ही बात है, शरीर को अंदर से साफ सुथरा रखा जाए। सर रसायन में क्या लिया जाए? रसायन में क्या लेना पड़ेगा? रसायन में रसायन में कोई भी सीजनल, अभी ही आपको बताया, कल भी मैंने बताया था, जिस सीजन में जो भी आपको मिलता है। इस सीजन में गन्ना मिलता है तो गन्ना जूस, स्ट्रॉबेरी आती है तो स्ट्रॉबेरी का, नारियल पानी, जिसमें से रस निकले। रस का भी डेफिनेशन दें तो लोग आम का रस कहते हैं, केरिनो रस। ये रस नहीं है, ये पल्प है, ये पेस्ट है। रस किसको कहते हैं? नींबू, मौसमी संतरे, ऐसे इसको दबाने से पानी की बूंद जैसा बूंद निकले, इसको रस कहते हैं। तो जो आपको पसंद है ऐसा कोई भी सलाद का रस, कोई भी फल का रस, कोई भी सब्जियों का रस, कोई भी पत्तियों का रस ले सकते हैं। इसमें पानी डालना पड़ेगा। जहां पानी की आवश्यकता पड़ती है वहां डाल सकते हैं। मानो अंगूर का निकालते हैं, पानी नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं, नारियल पानी डायरेक्ट पी सकते हैं। जहां पानी की आवश्यकता पड़ती है वहां अवश्य डालिए। बाकी जब तक बिना पानी निकलता है तो वहां पानी भी नहीं मिलाना है। और खास तौर पर गाजर, कैरेट, इसमें तो पानी मिलाना ही नहीं है, नहीं तो इसका वो बेस्वाद भी बन जाएगा। क्योंकि कैरेट, गाजर और पानी को केमिकली वो बनता नहीं है। तो ये डालने से
बेस्वाद हो जाएगा। तो कम से कम गाजर का जब जूस निकालते हैं तो इसके लिए जूसर आता है, इसका प्रयोग करना। जिसके पास जूसर नहीं है और केवल मिक्सर है तो मिक्सर में भी बिना पानी डाले इसको क्रश किया जाए और बाद में निचोड़ लिया जाए। तो इस तरह से भी जूस निकाल सकते हैं। तो जहाँ जहाँ हमें आवश्यकता लगती है वहाँ पानी डाल सकते हैं। बिना पानी डाले जो भी रस निकल सकता है इसमें पानी नहीं डालना है, और गाजर के जूस बनाने में पानी नहीं डालना है। ओके, और कोई? चैत्र में उपवास कैसे करना है? What? चैत्र महीने में उपवास करना है ना? हाँ, नवरात्रि करना है। नवरात्रि उपवास कैसे करें? तो कैसे कर उसमें कैसे करे? अच्छा, कैसे क्या? खाना पीना छोड़ दिया जाए, बिल्कुल हो गया उपवास। और जब भी उपवास करते हैं तब संजीवनी अवश्य करना, और हो सके तो आराम करना, यथासंभव आराम करना। ऐसा नहीं है कि उपवास किया तो थकान लगेगी, लेकिन उपवास का ज्यादा से ज्यादा फायदा तब हम ले सकेंगे जब हम आराम करते हैं। क्यों? कि उपवास के दौरान काम तो हम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, हेलो थकान भी नहीं लगेगी, लेकिन हमारी शक्ति को और काम में लगा देंगे। तो उपवास से जो सूक्ष्म सफाई होना है वो रुक जाएगी, क्योंकि हमारी शक्ति और काम में जुट जाती है। तो इसी शक्ति को हमें सफाई में लगाना है। तो ये तभी होगा जब हम कोई भी काम न करें, आराम ही करें, और संभव है तो सो जाए। तो मैक्सिमम जो हमारी वाइटल पावर है, शक्ति है, वो सफाई कार्य कर सकेगी। और उपवास के दौरान जो सफाई होती है वो स्थूल कम और सूक्ष्म ज्यादा होती है। स्थूल तो ये कर लेते हैं, आंवला युक्त जूस है, संजीवनी है, इसे स्थूल सफाई हो जाती है। जबकि सूक्ष्म सफाई के लिए केवल फास्टिंग, उपवास ही एकमात्र साधन है। हाँ जी, और कोई? फास्टिंग कितनी देर तक करें? बिल्कुल, फास्टिंग कितनी देर तक करें? क्यों? सुबह से हम 5 बजे उठे, फास्टिंग हम 12 बजे तक करता हूँ। सुबह का 12 नहीं, 1 बजे 9 दिवस नवरात्रि 12 घंटे तक फास्टिंग। શું કહેવા? कल भी बताया था, मैंने भी बताया था, हमारे पास 24 आवर्स 24 કલાક છે આપણી જોડે। 8 घंटा फास्टिंग सुबह में उठने के बाद, 8 घंटा खाओ पियो, 8 घंटा पाचन के लिए रखो। निर्जला उपवास करना है। फास्टिंग का मतलब वही है, पानी भी नहीं। 9 दिवस पानी एक खुराक है। 9 दिवस पानी नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं, 9 दिन पानी हम नहीं पीते हैं, हम करते हैं। आ जाओ हमारे साथ। और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे बस बातें करते हैं, रसाल भी नहीं। कुछ भी नहीं। उपवास का मतलब क्या? अरे कल हमने कितने एग्जाम्पल दिए थे, कहाँ ये व्यर्थ जाता है, क्या है मालूम नहीं होता। प्रहलाद भाई जानी का उदाहरण दिया था आपको। डॉक्टर पत्नी सुलेखाबेन चौधरी का दिया था। 2 साल में 542 डेज आउट ऑफ 730 डेज निर्जल उपवास, लगातार 30 दिन
निर्जल उपवास, केवल हवा पे, इतना इतना कहते हैं, बार बार कहते हैं, तो ये जाता कहाँ है? बाष्पीभवन हो जाता है, या तो ताला लगा दिया है बुद्धि को कि एंटर ही नहीं होने देते, छाता लगा देते हैं तो बारिश हो जाती है, हमें भिगो ही ना सके। क्या बात है? एक ही बात बार 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 बार। शायद इन लोगों के दिमाग में ऐसा होता है कि हम कहीं बोलने में गलती तो नहीं कर रहे, समझाने में। बिना पानी फास्टिंग कैसे किया जाता है, आज तक सुना नहीं। हाँ वही है ना। तो प्रयोग करके देखना है। तो जब खुद प्रयोग करेंगे तब पता चलेगा। ये बात तो जो बता दी वो ही है। ये रिकॉर्ड फिर से टेप को सुनाना है, और क्या है, और समय आपका और हमारा अननेसेसरी बिगाड़ना है, और क्या। हमारे अंकल हैं, वो कोमा में आ गए, एक्सीडेंट हो गए, पड़ गए, कोमा में आ गए। लगभग 8-10-12 महीने हो गए, 12 महीने एज है मतलब। कोमा से भी बाहर आ गए हैं लोग, और वो भी एक डॉक्टरनी। हमारे ही डिस्ट्रिक्ट की, अमरेली डिस्ट्रिक्ट, दामनगर, दोनों डॉक्टर है, हस्बैंड वाइफ। तो पेशेंट को देखते देखते कोमा में चली गई, और कोमा भी इतना गंभीर था। कोमा में भी बहुत नाना प्रकार के कोमा बताए गए हैं मेडिकल साइंस में। तो इसमें खुद डॉक्टर वो तो कुछ नहीं कर सके, तुरंत डिस्ट्रिक्ट प्लेस में एमडी डॉक्टर के पास ले जाया गया। उन्होंने भी केस हाथ में नहीं लिया और बताया ये तो बहुत इमरजेंसी है, आप तुरंत इसको कोई बड़ी से बड़ी हॉस्पिटल में ले जाओ, कॉरपोरेट हॉस्पिटल, या तो अहमदाबाद ले जाओ या तो राजकोट ले जाओ, हमारे बस की बात नहीं। तो स्टर्लिंग हॉस्पिटल में ले गए, राजकोट। वहां भी डॉक्टर ने बता दिया कि ये कभी ठीक होने वाला नहीं है। जितने भी केस ऐसे आज तक हमारे पास आए हैं, एक भी वापिस नहीं लौटा है, मौत ही अंजाम है। फिर भी प्रयास करेंगे हम। 8 दिन तक उन्होंने प्रयास किए, डे बाय डे हालत बिगड़ती गई, और उनके हस्बैंड डॉक्टर, जिसका नाम है अशोक भाई कोटिया, उनको लगा कि अब ज्यादा देरी करेंगे तो मैं मेरी पत्नी को खो दूंगा। तब उसने मुझे फोन किया कि ऐसी स्थिति है, आप यहां आ जाइए। मैंने बताया कि हॉस्पिटल में मैं आके क्या करूंगा, आपकी हॉस्पिटल होती तो मैं अवश्य आ जाता, लेकिन तो स्टर्लिंग हॉस्पिटल, कॉरपोरेट हॉस्पिटल कि जहां किसी को आने नहीं देते, खाना भी वहां से जो कुछ स्पेसिफाई करते हैं डाइटिशियन, वो ही दिया जाता है। हाँ, स्पेशलाइजेशन है सब कुछ वहां, डॉक्टर का भी कुछ नहीं चलता। खाने पीने के बारे में, खाने पीने के बारे में जो डाइटिशियन का है वो ही
और वो ही केवल डिस्क्राइब कर दें, स्पेसिफाई कर दें और हम लेके जाए वो भी नॉट अलाउड। अंदर से ही बना के देते हैं, उनका स्टाफ, बाहर का अलाउड नहीं है। तो फिर ये मुझे तो कैसे आने देंगे? तो उन्होंने बताया कि मैंने मना लिया है क्योंकि मैं खुद डॉक्टर हूँ, तो खग जाने खग ही की भाषा, ये डॉक्टर लोग हमारी भाषा जानते हैं। और मैं, हाँ, वो डॉक्टर भी क्यों ऐसे मानने लगा कि वो ही वॉज डायबिटिक सिंस लास्ट 20 ईयर्स, 20 सालों से वो डायबिटिक थे, इंसुलिन ले रहे थे, लेकिन एनडीएस फॉलो करने से उनका डायबिटीज खत्म हो गया। तो ये बात उन्होंने ये सभी डॉक्टरों को बताया कि देखो ये रिजल्ट है, और आप तो ठीक नहीं करने वाले हैं, आपने पहले बोल दिया है। एक हफ्ता निकल चुका, जब हम आए उस वक्त जो स्थिति थी इससे भी काफ़ी बिगड़ चुकी है, पेशेंट हमारा है, तो हमें, हमारा अधिकार है कि हम जो जी चाहे करें। तो ये हमारी इच्छा है कि ये बीवी चौहान को जाए, वो देखे और वो ही ट्रीटमेंट दे आपकी ही हॉस्पिटल में। तो तुरंत मना कर दिया, यहाँ किसी को अलाउड नहीं है। तब उन्होंने बताया कि मैं खुद डॉक्टर हूँ, मुझे डायबिटीज था, हमारी ये एलोपैथी या होम्योपैथी या आयुर्वेद कोई इसको दूर नहीं कर सकी है जो इन्होंने दूर किया है। ये मेरे रिपोर्ट्स है, मैं खुद कहता हूँ बीइंग ए डॉक्टर, और आज के भी मेरे पास रिपोर्ट है, मैं रिपोर्ट करवाता ही रहता हूँ हर महीने। तो ये भी रिपोर्ट आप देख सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको भरोसा नहीं बैठता और कोई लेबोरेटरी पे, आपकी लेबोरेटरी में आप मेरा शुगर देख सकते हैं। और केवल यही स्थिति में नहीं, आप जितनी भी मिठाइयाँ चाहो मुझे खिला दो, केवल गन्ना जूस ऐसा नहीं, लेकिन आप जो चाहो, लड्डू खिलाना है लड्डू, मोहन था, जलेबी, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, जो भी आप कहो मैं खाने को तैयार हूं, खिलाया भी। और बाद में जो PPBS देखते हैं, ये देखा, पहले फास्टिंग का तो देख ही लिया था, वो तो नॉर्मल था, 80 के करीब था। और इतना मिठाइयाँ खाने के बाद जो डायबिटिक था, जिसको 700 तक शुगर आती थी दवाइयों के साथ, और आज उनको इतना खिलाया गया और बाद में PPBS मेजर किया गया 2 घंटे के बाद, तो इट वॉज ओनली 110। तब ये लोगों ने माना और परमिशन दिया। मैं गया, मैंने अपने हिसाब से जो हम यहाँ आपको बताते हैं ऐसा जाकर के तुरंत संजीवनी करवाना शुरू किया। खाना पीना जो वो लोग देते थे, मैंने देखा चार्ट पूरा, तो चार्ट ही ऐसा था कि जो कोमा में नहीं है वो भी कोमा में चला जाए।
हाँ, हर 2 घंटे देता है। हाँ, डालते रहो डालते रहो डालते रहो। वो खुद तो, उनको तो पता नहीं था, तो ट्यूब डाल के इसमें फनेल, हाँ, जैसे हम केरोसिन डालते हैं उस तरह ये डालते रहते थे हर 2 घंटे। इसमें भी क्या, ज्यादा से ज्यादा दूध और बाकी का खिचड़ी कढ़ी, हाँ, ये सब कुछ जो वो मानते थे कि इसमें से विटामिन प्रोटीन कैल्शियम ये वो मिलते हैं, ऐसा भोजन और सप्लीमेंट ये सब कुछ हर 2 घंटे डालते रहते थे। हाँ, जो तो कोमा में है उसकी अपनी डिमांड है ही नहीं, ना कोई टेस्ट है ना कोई जरूरत भी है, क्योंकि उनको तो मक्खी भी नहीं उड़ाना है, कोई फिजिकल वर्क नहीं, तो उसको खाने की क्या आवश्यकता। फिर भी इतना डालते रहते थे तो शरीर की हालत क्या होगी। ये सब कुछ हमने बंद करवा दिया। हमने बताया कि इसकी डिमांड नहीं है, इसको कोई फिजिकल वर्क नहीं है, तो कुछ भी खाने को नहीं देना है। लेकिन तब रिश्तेदार आ जाते हैं बीच में। डॉक्टर तो है ही नहीं, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, लेकिन नहीं तो ये शरीर को ये कहाँ से मिलेगा, वो कहाँ से मिलेगा। और रिश्तेदार लोग, खाना तो देना ही पड़ेगा ना, नहीं तो पेशेंट मर जाएगा। तो ये सभी के सामने हमें भी झुकना पड़ता है। तो हमने रास्ता निकाला कि कम से कम मात्रा में हरी पत्तियों का जूस दिया जाए, कम से कम चम्मच से, नहीं के गिलास से। तो इस तरह हमने जब ये सब कुछ शुरू किया, संजीवनी चालू ही रखी, उपवास पे ज्यादा से ज्यादा जोर दिया, और जब भी जूस दिया गया तो ये ग्रीन जूस आंवले डालकर, तो जो कभी ठीक नहीं होने वाली थी, जीवित नहीं होने वाली थी, और डे बाय डे जिसकी स्थिति बिगड़ती जा रही थी, ऐसी वो डॉक्टरनी, सीमा बेन नाम है उसका, हो चौथे दिन आंख खोलने लगी, पहचानने लगी, हाथ पैर हिलाने लगी, और 8वें दिन तो उनको डिस्चार्ज मिल गया। इस बात को आज 7 साल हो चुके हैं, और दामनगर में उनकी हॉस्पिटल वो छोटी पड़ने लगी। तो अब ये लोग शिफ्ट हो गए अहमदाबाद में। तो आज हस्बैंड वाइफ दोनों अहमदाबाद में हैं, और ये अपना कारोबार चला रहे हैं। तो एक कोमा की जो बात है, ऐसा कोमा, हाँ, कि जिसमें से कोई कभी बाहर नहीं आ सकता, ऐसा मेडिकल साइंस सर्टिफाई करता है। तो इसमें से भी ये एग्जाम्पल है कि बाहर आ चुके हैं। अरे कोमा तो अभी भी जिंदा आदमी है। हाँ, जब संजीवनी के बारे में आपको समझाया गया नरहरि भाई के द्वारा, तब उन्होंने शुरुआत ही वहां से की थी कि ये मुर्दे को जिंदा करने वाला है। तो हमने 2-3 केसेस ऐसे देखे हैं, एक नहीं 2-3। इसमें नॉर्थ गुजरात के भी हैं, संसारी के भी हैं और सन्यासी के भी हैं।
तो हमारे हाथों यानी हम फिजिकली प्रेजेंस नहीं थे, हमारी गाइडेंस से। मैं तो कच्छ में था और बड़ौदा से फोन आया कि हमारे पिताजी कोमा में आ गए थे। कोमा में से बाहर निकालने की दवाइयाँ देते देते वो वेंटिलेटर पे आ गए हैं। वेंटिलेटर को भी आज 1 हफ्ता हो चुका है और अब तो डॉक्टर भी वेंटिलेटर के लिए तैयार नहीं है। वो भी कहते हैं कि पेशेंट का जो शरीर है वो साथ नहीं दे रहा है, तो ये डे बाय डे डिटेरिएट हो रहा है। तो अब ये वेंटिलेटर बंद कर दें और राम बोलो भाई राम, हाँ, अग्नि संस्कार कर दिया जाए, ये डॉक्टरों ने बता दिया। तब ये फोन आया, मैंने कहा मैं तो कच्छ में हूँ, दूसरा ऐसा कोई हमारे पास केस आज तक नहीं आया है। प्रयोग करना है तो आप कर सकते हैं और प्रयोग में आप जानते हैं यही तो बात है, 3 बातें इसमें। यहाँ तो जो कोमा पे है, कोमा नहीं, कोमा से भी आगे वेंटिलेटर पे हैं, तो उनको खाने की भी आवश्यकता नहीं है, तो उनको आंवला जूस भी नहीं दे सकते हैं। तो अब एक ही बचा है, वो है संजीवनी क्रिया करवाते रहो। कितने बार हमने बताया, इसमें कितने बार की वो कोई है ही नहीं। ये जो लगाते हैं पोट, पात्र, इसकी जगह बाल्टी लगा दो, हाँ, बड़ा एक बैरल लगा दो, डायरेक्ट नल के साथ वो कनेक्ट कर दो। इसको नल में से पानी इसमें आता रहे और इसमें से पानी अंदर चढ़ता रहे कंटिन्यूअस। तो 10 बजे की बात थी, 10 बजे फोन आया था। 4 बजे, उसी दिन 4 बजे फिर से फोन आया कि अब तो ये जिंदा हो गए। और लंबे समय तक जिए भी। जब भी बड़ौदा में सेमिनार होता था, वो अवश्य आ जाते थे अपना अनुभव बताने के लिए। तो ऐसे चमत्कारिक परिणाम जब मिले हैं, तभी ये एनिमा जो पोट कहते थे हम, इसका नाम बदलकर अंबाजी में हमने इसका नाम बदल दिया और संजीवनी पात्र रख दिया। तो कोमा तो यहाँ एकदम हल्का सा कह सकते हैं, क्योंकि मुर्दा भी जब जिंदा हो जाता है तो कोमा तो इसके आगे, हाँ, बहुत कम पड़ जाता है। उस टाइम वो दवाइयाँ बंद करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? जो दवाई की क्या आवश्यकता, क्यों है मुझे तो पता नहीं चलता कि दवाई ली आज तक क्या फायदा हुआ। एक्चुअली क्या है कि वो मित्तल हॉस्पिटल में थे अजमेर में, घर पे आगे 8 दिन हो गए घर पे, तो दवाई वगैरह डॉक्टर आता है, दवाई देता करता, ये चल रहा है उनका प्रोसीजर, चल रहा है उनका। मैं वही तो कहता हूँ, दवाई क्या फायदा हुआ। नहीं हुआ कुछ भी फायदा। इतना तो सोच सकते हैं, तो कम से कम दवाई का खर्च तो बचाओ। हाँ, अच्छा, आप ये बता रहे हैं कि वो जैसे बाल्टी लगा के करा तो उसको आपको पेट नहीं फूट जाएगा उसका? वो तो हमने कोमा, ये इसके लिए बताया, कोमा के लिए नहीं बताया है। वो जिंदा है, वो तो मुर्दा था, इसके लिए बताया था। तो 2-3 बात देते रहो बस। हाँ जी, क्या जूस रेडी है अभी?
12:15 बज गए हैं, 11:45। 12 बजे, ओके। तो अभी हमारे पास 15 मिनट है, तो किसी को अभी भी कुछ पूछना है तो मोस्ट वेलकम। थोड़ा हाँ मैं सुनता हूँ। हाँ, तुम्हें बोलो बोलो। मैं उनको माइक दो भाई, आ रही माइक आ रही। सीधा एमनो भाव प्रदर्शित करो। आगे आओ, માઇક લઈને બોલો. નવી ભોજન પ્રથાની સાધના બાબતમાં તો ગુરુજીએ બહુ સરસ વિવરણ કર્યું. પંડ્યા સાહેબે સંજીવની વિશે પણ સરસ કર્યું. હવે આપણું જે સાધના, સેવા અને સુમિરન, તો હા, એ તો એના ટર્ન બાય ટર્ન આવવાનું જ છે, કારણ કે હજી આપણી આગળ અડધો દિવસ આજનો બાકી છે, કાલનો અડધો દિવસ બાકી છે. તો એક પછી એક ટોપિક બાય ટોપિક લેતા જઈએ અને એને પૂર્વ ન્યાય આપીએ કે જેનાથી અધૂરું અધૂરું છોડી છોડીને બધું થોડું થોડું કરતા જશો, આગળ વધતા જશો તો બધાની કક્ષા એવી નથી. અને जब एक को पकड़ेंगे, हम कहते हैं एक माला है, इसमें 3 मन के हैं। एक है तप, दूसरा है सेवा, तीसरा है सुमिरन। ये तीनों धागे से बंधे हुए हैं। कोई एक को पकड़ लो, कोई सेवा को पकड़ लेते हैं, कोई सुमिरन को पकड़ लेते हैं। देखो नरसिंह मेहता है, उन्होंने सुमिरन पकड़ा था। हाँ, बस वो भजन ही गाते रहते थे। और जो हमने एग्जाम्पल्स देखे, मनु शत्रुपा, माता पार्वती, उन्होंने तप को पकड़ा था, तपस्या की। किसी ने सेवा का रास्ता पकड़ा, जलाराम बापा, ऐसे कोई। तो कोई भी एक को पकड़ लो, बाकी के दोनों तो जुड़े हुए ही हैं। तप को पकड़ लो तो भी भगवान मिलेंगे। इसमें एक एग्जाम्पल है माता पार्वती और मनु शत्रुपा और ध्रुव जी आदि बहुत सारे। उसी तरह से सेवा या सुमिरन कोई भी एक पकड़ लो जो आपके लिए आसान है। देखो मैंने तप को पकड़ा था, मेरी पत्नी ने सेवा को पकड़ा, तो भी उनके रोग हट गए। गंभीर रोग जो कभी मिटने वाले नहीं थे, सर्टिफाइड बाय डॉक्टर कि ये कभी ठीक होने वाला नहीं है, सारा जीवन दवा लेते रहो और जो भी होता है भुगतते रहो। लेकिन सेवा उनका मुख्य मंत्र रहा, मुख सेवा, तो इनके भी रोग चले गए और जीवन जीने के जैसा, या ऐसे कहे कि प्रभु प्राप्ति हो गई। पत्नी को सेवा से, मुझे तप से, और सुमिरन अपने आप आ जाता है। इसलिए सुमिरन के बारे में ज्यादातर मैं नहीं बताता,
जब भी मुझे ये लगेगा तब सुमिरन के लिए भी मैं बोलूंगा। आज तो मुझे तप और सेवा दो ही काफी लगते हैं, और जिनके जीवन में तप और सेवा आ गया उनके जीवन में सुमिरन अपने आप बिना प्रयास आ जाएगा। ये मेरा निजी अनुभव है। इसके लिए कुछ करना नहीं है। इसलिए कल भी मैंने बताया था, आज फिर से दोहराता हूं, डोंट डू एनीथिंग, लेट इट हैपन वॉट एवर हैपन्स। जो भी होता है होने दीजिए, करो मत। हम करते हैं, इस हिसाब से असफल रहते हैं। ध्यान के कितने केंद्र चल रहे हैं सारे विश्व में, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन संस्थाएं भी काम कर रही है, लेकिन ध्यान किसी को नहीं लगता, किसी को नहीं। क्योंकि वो करते हैं, और ध्यान करने की बात नहीं है, सुमिरन करने की बात नहीं है, ये होना है अपने आप। ध्यान केंद्र में जाते हैं तो सिखाया जाता है कि कोई एक आसन में बैठिए, अंधेरा कर दीजिए, ज्ञान मुद्रा या और कोई मुद्रा बना लो। कमांड देते रहते हैं ध्यान कराने वाले, जिसको कभी ध्यान लगा नहीं। ऐसे लोग कमांड देते हैं, ध्यान करवाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि डॉक्टर दवाइयां देते रहते हैं, जिसका खुद का रोग वो नहीं मिटा सके हैं, वो सारी दुनिया को दवाई देते हैं। उसी तरह जिसको कभी ध्यान नहीं लगा, वो सारी दुनिया को ध्यान की बातें करते हैं। जिसको कोई मोक्ष नहीं मिला, वो मोक्ष की बातें करते हैं। हाँ, तो ये दुनिया में आजकल ऐसा ही चल रहा है, और हम इसको फॉलो करते हैं। हमारे पास लोग आते हैं, आपके नजदीक रहने से आपकी ओरा का लाभ हमें मिलेगा। मैं कहता हूं नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। लोग हमारे पैर पकड़ते हैं, हम कहते हैं आज तक कितने के पकड़े, क्या फायदा हुआ। हमारे पैर मत पकड़ो। हाँ, एक गद्दे की लात जैसा है, तो हमारी लात मत पकड़ो। पकड़ना आदत पड़ गई है पकड़ने की, तो हमारी बात पकड़ो। यदि फायदा होगा, लात पकड़ने से कभी नहीं होगा, बात पकड़ने से संभावना है। तो सुमिरन भी करने की बात नहीं है। मैं तो वहां तक कहता समझने की बात भी नहीं है। ये भी तो एक क्रिया है ना, समझना। समझने के लिए सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तो ये भी तो एक क्रिया है। जबकि सुमिरन है वो कोई क्रिया नहीं है, ये अपने आप बाय नेचर अंदर से वो उभरती है। तो हम कहते हैं जो करना है वो यही है, तप और सेवा।